Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 10, employment and unemployment. And today our topic is casualization and informalization of workforce. Okay, and this is our lecture number 4. So let's start. So in our previous lectures, we have already discussed about some basic concepts in which we studied about the unemployment, what is unemployment, who is a worker, okay, then types of workers, self-employed and hired workers, and casual and regular workers. Then we studied about the labor supply, labor force and workforce, and the difference between labor supply and labor force. Okay. After that, we studied about the how to calculate workforce, how to measure the workforce, and how to measure the number of persons unemployed in the economy, and the rate of unemployment and participation rate. Then we studied about the size of workforce in India. After that, we studied about two basic questions. Why is the bulk of our workforce rural based? And second question was, why is the percentage of female workers low and lower still in urban areas? Okay, then we studied about the rate of participation in India, in which we studied some observations. First is high dependency ratio, second is high rate of participation but low level of productivity in rural areas, and third is high rate of participation from women in rural areas. Okay. After that, we studied about the self-employed and hired workers in India. So we took some data. Then we studied about the occupational structure or distribution of workforce by industry. Okay. So हमने ये सब स्टडी करा है. After that we studied about the distribution of rural urban workforce across different sectors. And then we studied about the distribution of male female workforce across different sectors. Then the last topic was only a modest change in occupational structure. Okay. So students, today we will discuss a topic jobless growth. What is jobless growth? अब देखिए यहाँ पर नाम से ही ये क्लियर हो जाता है टॉपिक कि जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि जॉब तो है, जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है, जॉबलेस यानी जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं है, फिर भी ग्रोथ हो रही है. तो ये स्टडी हमने करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. सो एक्चुअली जो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस, आप सबको पता है कि जब जीडीपी हमारा राइज होता है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. ठीक है, जीडीपी राइज होने से. तो ये जो जीडीपी जब राइज होती है तो ये हमारे पास क्या होती है, दो तरीकों से, टू वेज होते हैं जिनके जरिए हम लोग इस क्या कर सकते हैं, जीडीपी को राइज कर सकते हैं. क्योंकि जीडीपी राइज होने का मतलब क्या है कि हमारा आउटपुट का लेवल इंक्रीज होना. सो इट इम्प्लाइज अ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट का लेवल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस जीडीपी राइज हो रही है, और जीडीपी राइज हो रही है इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. सो ये जो आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता है ये हम से अचीव कर सकते हैं. दो हमारे पास टू वेज है यहाँ पर. So we have two ways in which we study, in which we achieve to increase in the level of output. So first is through greater employment. पहला जो वे है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, जो लेवल आउटपुट के लेवल को जो इंक्रीज करना है, उसको जो इंक्रीज हो जाता है उसको अचीव करना है हमने. तो पहला जो हमारे पास तरीका है वो है थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट. एक तो पहला हो सकता है कि आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं. ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही, इट मींस एम्प्लॉयमेंट के ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ कि
जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ उतना ही आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सभी के सभी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी राइज हो रही है, जीडीपी राइज हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ओके, तो फर्स्ट जो वे है, दिस इज द greater employment, okay, through greater employment, and second is through better technology, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उतना ही आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो हाई होगा। Okay, so so you know that India is a poor country. So in poor countries like जैसे हमारा इंडिया है, ये भी poor country है, where there is staggering unemployment, जहाँ पर जो unemployment है वो स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी चौंका देने वाली अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी ज्यादा एक्सेस में अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। सो इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मीनिंगफुल only when it is associated with greater opportunities of employment। तो क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो इंडिया है वो एक पुअर कंट्री है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत एक्सेस भी है, तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्या होगी, केवल तभी मीनिंगफुल होगी, केवल वो तभी मीनिंगफुल बन सकती है जो किसके जरिए, अगर आपका जो फर्स्ट वे है थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, इसके थ्रू अगर हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इट मीन्स कि जितना ज्यादा हमारी जैसी कंट्रीज के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू क्या होती है, आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता है और जीडीपी ग्रोथ राइज होती है, एंड जीडीपी राइज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होती है, तब वो मीनिंगफुल है। सो क्योंकि उससे क्या होगा, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, उतना ही पॉवर्टी क्या होगी, आपकी कम होगी। सो दैट पॉवर्टी इज कॉम्बेटेड। ओके, अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग जीडीपी मोर थ्रू टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पर हमारी मतलब एक तरीके से ये एक क्या है, हमारे लिए एक बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो हमारी है उसमें जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, बट वो किसके थ्रू हो रही है, जो सेकंड वे है हमारा, सेकंड वे थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी, जबकि हमें चाहिए क्या, हमारी जैसी इकोनॉमी को फर्स्ट वे चाहिए थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ज्यादा को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीडीपी राइज हो रही है। ठीक है, तो लोग जो हमारी लेबर है जो अनएम्प्लॉयड है वो तो अभी भी अनएम्प्लॉयड ही है। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो सिचुएशन है ना, दैट इज द जॉबलेस ग्रोथ। So jobless growth is a situation when the level of output in the economy tends to rise owing to innovative technology without any perceptible rise in the level of employment. And jobless growth leads to chronic unemployment even when there is a rise in GDP. Clear, students? So now the next topic is why are relying more on technology and less on employment. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि why are we relying more on technology, हम टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा भरोसा क्यों क्यों करते हैं और लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम क्यों है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि our growth process is being increasingly hijacked by the MNCs, multinational companies। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बढ़ रही है किसके द्वारा, एमएनसीज के द्वारा। और एमएनसीज हमें पता है ये वो कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, ये एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्या करती हैं, ग्रोथ को, हाई ग्रोथ को अचीव करती हैं, कंपैरेटिवली किसके थ्रू, ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर। ये मैन पावर का उतना यूज नहीं करती जितना ये टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करती है एमएनसीज। ओके, सो यहाँ पर क्या बात हुई कि द कंपनी स्पेशलाइज इन अचीविंग, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दीज कंपनी स्पेशलाइज इन अचीविंग हाई ग्रोथ थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रादर देन द थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर। ओके, सो our growth process is being increasingly hijacked by multinational companies. So these companies specialize in achieving high growth through efficient use of technology rather than through greater use of manpower. So the obvious result is that growth is moving faster than the opportunities of employment. By and large, it is a jobless growth. Okay, so we may end up this section by stating the fact that during the period of 1951 to 2000,
while growth rate of GDP has risen from 3.6% to 8% per annum. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कि अगर हम बात करें 1951 से लेकर 1951 से 2000 का पीरियड देखिए, ये 2000 का पीरियड देखिए, तो यहाँ पर जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो पहले यहाँ पर 3.6% से ये इंक्रीज होकर 8.8% हो गई है। ठीक है, यानी कि ये तो बड़ी है, पर ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज टेंडेड टू स्लाइड डाउन, जबकि एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट क्या है वो पहले से कम हो गया है। पहले कितना था 1.5%, 1.5% आपके पास क्या था एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट, जो कि अब क्या हो गया कम होकर कितना रह गया 1% रह गया। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ तो राइज हुई है इस टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो पहले से डिक्लाइन हो चुका है। सो द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द टू रेट्स इज एन अलार्मिंग साइन फॉर अ कंट्री where jobless labor force has tended to swell over time. Yeah. Now the next topic is casualization and informalization of workforce. Okay, so अब यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे कि कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स का क्या होता है। सो कैजुअलाइजेशन देखिए, वैसे तो नाम से आपको यहाँ पर पता चला कैजुअलाइजेशन, देखिए जहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं ना वो कैजुअली वर्क करते हैं, जैसे डेली बेसिस के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो कैजुअली जिनको काम मिलता है रेगुलर नहीं होते। सो एन इंटरेस्टिंग फीचर of our workforce is that it includes a large percentage of casual workers. यहाँ पर ज्यादातर परसेंटेज हमारा जो है वर्कफोर्स के अंदर, जो हमारी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स सबको पता है क्या होती है कि जितने हमारे एक्चुअल में हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से एक्चुअल में कितने जो है किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इसमें विलिंग वाले नहीं आते, इसमें जस्ट आपके जो मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी वर्क फोर्स है उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज किस चीज का है, कैजुअल वर्कर का, एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप। और ये जो नंबर है ना ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कम होने के बजाय। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग, सो वो देखते हैं वो क्या है कि परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स हैज राइजन फ्रॉम 23% इन 1970 टू 73 में ये 23% से बढ़ा है। ठीक है, एंड टू 33% इन 1999-2000, और यहाँ से 70 टू 73 में 23% से ये 99-2000 में 33% से राइज हुआ, एंड फर्दर टू 39.3% इन 2009-10, और 2009-10 में फिर ये क्या हुआ, फिर ये 3.9% से इंक्रीज हो गया। सो इट इज स्लाइटली डिक्लाइन टू 30.9। अब यहाँ पर ना कुछ कमी आई, थोड़ी सी डिक्लाइनिंग आई किसके अंदर 2013-14 के अंदर, जो कितने से डिक्लाइन हुआ 30.9 से, और 2017-18 के अंदर अगेन इसमें डिक्लाइनिंग हुई, वो कितने की हुई है 24.9%। ओके, अब नेक्स्ट हम अगर देखें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, हमारे यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आपको पता है कौन होते हैं। ठीक है, जो अपने खुद का बिजनेस हो या सेल्फ ओन्ड जो वर्कर्स होते हैं, जो खुद का ही कोई काम कर रहे होते हैं, खुद की प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। सो परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैज डिक्लाइन फ्रॉम 62% in 1972-73 to 52% in 1999-2000। क्या आप ये देख लो कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है उसका परसेंटेज जो है वो 70 टू 73% में 62 से 99-2000 में गिरकर कितना रह गया 52%, एंड आगे एंड फर्दर 44% इन 2009-10 में और ज्यादा ये कम हो गया 44% पर आ गया। सो हाउएवर इट अगेन इंक्रीज, हालांकि अब फिर से बढ़ रहा है इन 2013-14 में ये 49 पॉइंट पहले कितना था 44 से ना 49.5% पर हो गया, और इन 2017-18 इट फर्दर इंक्रीज टू 52%। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट करते हैं रेगुलर हायर वर्कर्स की, यानी ये वो वर्कर हैं जिनको करते दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं लेकिन रेगुलर हैं। ठीक है, रेगुलर जैसे कि कोई किसी के यहाँ पर क्या करते हैं, रेगुलर वर्कर होते हैं, उनको सैलरीज दी जाती हैं और वो रेगुलर वर्कर हैं, उनको हटाया नहीं जाता है, उनको काफी सारी और भी दूसरी जो है जो उनको
सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं। सो परसेंटेज ऑफ रेगुलर हायर वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स कंटिन्यूज टू हॉवर हॉवर, मतलब क्या हुआ कि मतलब कि वहीं पर ही उसी जगह पर है, मतलब जो परसेंटेज चल रहा था ना वहां से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है, उसी में ही चारों तरफ, उसी के चारों तरफ वो घूम रहा है। सो कंटिन्यू टू हॉवर अराउंड 15% during the period of 1973-74, 72-73 to 99-2000। वो कह रहे हैं कि 72-73 से लेकर अगर हम 99-2000 की बात करें तो ये नियर अराउंड नियर 50% ही रहा है, इसमें कुछ भी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीजिंग नहीं हुई है। बट इट वाज 16.8% इन 2009-10। 2009-10 में कितना हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 15 से 16.8%। एंड नाउ 2017-18 it is 22.8%. Okay, now the next is 3.7% ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। अब यहाँ पर आ गए हमारे एम्प्लॉयड पर्सन जो काम कर रहे हैं। 3.7% ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन वर रिपोर्टेड टू बी हायर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कौन से होते हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं जो जिनको ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, जैसे 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है कि ये वो वर्कर होते हैं जो उस टाइम पीरियड के अंदर इनको क्या किया जाता है, एक इनसे बॉन्ड भरवाया जाता है और उसी के अंदर क्या होता है कि इनका टाइम पीरियड होता है कि इनको इतने साल के लिए रखा जा रहा है, ठीक है, और उससे उसके अंदर ये छोड़कर नहीं जा सकते या फिर क्या है कि और कहीं और जॉब नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, यानी ये भी हायर किए जाते हैं। और इनका परसेंटेज जो है वो 2015-16 के अंदर अगर हम देखें तो वो कितना था, 3.7%। ओके, क्लियर। So, casualization of workforce refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. तो आप देखिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये क्या हो गई, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ अगर आपका टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज अगर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है, तो ये होता है कि ये कौन सी सिचुएशन है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ओके, सो ये जो फिगर्स हमने देखी हैं, ये जितनी भी सारी हमने देखी है फिगर्स, सो द फिगर्स रिवील दैट ओवर टाइम आवर वर्कफोर्स इज सफरिंग एन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन। सो व्हाई शुड इट हैपेंस? सो द लॉजिक इज सिंपल and runs like this। जैसे the bulk of self employed workforce is found in rural areas। आपने देखा कि रूरल एरियाज के अंदर, हम पीछे भी देख कर आए हैं कि रूरल एरियाज के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है वहां पर, क्योंकि वहां पर रूरल एरियाज में क्या है, जो भी और जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं उनकी वहां पर कमी होती है, तो लोग जो होते हैं वो अपनी ही फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो अपना फॉर्म होती है, अपनी फील्ड होती है, उसी में ही वहीं पर ही वो एंगेज हो जाते हैं, वहीं वो अपनी खेती बाड़ी करते रहते हैं। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स जो है रूरल एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। एंड सेकंड, पीपल वर्क ऑन देयर फॉर्म्स एंड फील्ड नॉट बिकॉज एवरीबडी इज गेनफुली एम्प्लॉयड। अब आप ये सोचें कि अगर सभी के सभी क्या है रूरल एरियाज में अपनी फॉर्म पर या अपनी फील्ड पर काम कर रहे हैं, तो वो सभी मतलब गेनफुली एम्प्लॉयड है, मतलब कि वो पूरे सभी एम्प्लॉयड है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉट बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आउटपुट, और ये भी है कि हर कोई आउटपुट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, बट सिंपली बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग नॉन फॉर्म जॉब्स इवन व्हेन दे विश टू माइग्रेट। वो इसीलिए अपनी फील्ड पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनको और दूसरी नॉन फॉर्म जॉब्स के अंदर जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं। वो चाहते हैं कि वो माइग्रेट हो, वो उस खेती बाड़ी से निकलकर कोई और काम करें, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती है। और उस एग्रीकल्चर के ऊपर अब आपको पता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कि आपको जितने चाहिए, देखिए एक फॉर्म से, एक फील्ड से जितनी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकती है उतनी ही होगी, ठीक है, उसके लिए भी एक नंबर ऑफ जो फार्मर्स होते हैं उतने ही चाहिए होते हैं। अब अगर आप उनके ऊपर ज्यादा भी लगा लोगे तो भी प्रोडक्शन जो है एज इट इज होगी, तो प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी इंक्रीजिंग नहीं होगी कि आप सोचें कि उस खेत के ऊपर आप क्या कर लें, उस फील्ड के ऊपर लेबर को बढ़ाते चले जाएं या और ज्यादा पर्सन लगाएं।
ठीक है, आउटपुट में कोई भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये लोग इसीलिए अपनी खेती पर काम करते रहते हैं, ये अपने फील्ड पर, क्योंकि इन्हें कहीं और काम नहीं मिलता। सो दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फॉर्म्स ओनली फॉर द नेम चेंज, केवल नाम के लिए ये अपनी फॉर्म पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, इनफैक्ट दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। So taking a chance for opportunities, these marginal workers tend to migrate to urban areas. And more often than not, they get employment only as casual workers or as daily wagers. So this is the story of unskilled workers leading to casualization of employment. अब देखो, आप किसी को भी अगर कहीं भी चांस मिले, तो जो हमारे जितने भी ये मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, ये माइग्रेट होना चाहेंगे कि अर्बन एरियाज में जाएं, कुछ काम करें वहां पर जाकर, ठीक है, लेकिन वहां पर भी उनको क्या होते हैं, वे केवल एक कैजुअल वर्कर के रूप में ही उनको कोई ना कोई काम मिलेगा, या डेली बेसिस के ऊपर ही वो लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये कौन से ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनकी ये स्टोरी है, जहां पर जो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा हो जाता है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कैजुअल वर्कर के रूप में काम करते हैं, और उनकी इंक्रीजिंग जो है, मतलब उनका जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इवन स्किल्ड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, अगर हम बात करें कि हमारे वो तो अनस्किल्ड वर्कर्स हुए, जो कि क्या हुए, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कि अपने गांवों से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं कुछ ना कुछ कमाने के लिए। बट इवन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे इन द अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स, ये भी स्ट्रगल करते रहते हैं रेगुलर जॉब्स के लिए। एंड दिस इज ओइंग टू मासिव अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके कारण across all sector of the economy, unemployment is so huge that the bargaining power of the worker is significantly reduced. अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, तो यहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, तो लाइन में खड़े रहते हैं सभी के सभी काम करने के लिए। तो बार्गेनिंग पावर जो है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, कम हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर्स इज वेरी हाई। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की बार्गेनिंग पावर हाई हो जाती है, यानी कि अब उनको क्या होगा, उनके सामने लाइन लगी हुई है अनएम्प्लॉयड पर्संस की, लेबर की लाइन लगी होती है, वर्कर्स की लाइन लगी होती है, तो वहां पर उनकी बार्गेनिंग पावर हाई हो जाती है। उनको जो जितने कम रेट के ऊपर, जितने कम वेज रेट के ऊपर जो भी काम करने के लिए मिलेगा, उसे वो लगाएंगे। ओके, सो दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर। तो इसीलिए वो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हायर एंड फायर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन, अब इनफॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट मे ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं, तभी हम क्लियर कर पाएंगे सभी चीजें। सो फॉर्मल सेक्टर्स रेफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मल सेक्टर कौन से होती हैं? जितने भी सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, वो हमारे फॉर्मल सेक्टर होते हैं। और इसमें आपके पास क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच हायर द 10 और मोर वर्कर्स। ये आप यहाँ पर देखो, एक चीज ये नोटिस करने वाली है, यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी आती है, लेकिन वो आएंगी जिनके यहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हायर किए हुए हैं, वो आपके फॉर्मल में आएंगे। ओके, सो दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स। यानी आप ये कहें कि जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फॉर्मल वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर्स। सो इनफॉर्मल सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये वो हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ठीक है, दीज आर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। एंड इसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कौन सी एंटरप्राइजेस इसमें इंक्लूड होंगी? जिनके में क्या होगा, विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। यहाँ पर 10 वर्कर से कम जो है हायर किए हुए होते हैं। एंड बिसाइड फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, ये सब के सब हमारे पास किस में आते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर्स में। सो दोज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे?
informal workers. Yeah. So from the viewpoint of employment status, the underlying differences between formal and informal sector is that. ठीक है, मतलब कि आप ये कहो एक तरीके से आप फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को आप क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो फर्स्ट क्या हुआ आपके पास, फर्स्ट इज वर्कर इन फॉर्मल सेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू social security benefits such as provident fund, gratuity pension, etc. While workers in the informal sector are not. जो आपके formal sectors में workers होते हैं उनको कुछ social security benefits जो हैं वो उनको मिलते हैं, जैसे कि वो उनके हकदार होते हैं, वो उनको मिलते हैं, जैसे provident fund हो गए, gratuity pension. लेकिन जो हमारे informal sectors होते हैं उनमें ऐसे कोई भी social security benefits नहीं मिलते. ओके, सेकंड क्या है, सेकंड व्हाइल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर इन फॉर्मल सेक्टर इज प्रोटेक्टेड टू वेरियस लेबर लॉ. यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ जहाँ पर इन फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर जो वर्कर्स का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड होता है किसके थ्रू, कुछ लेबर लॉज के थ्रू. ठीक है, एंड बट अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, सो हार्डली एनी प्रोटेक्टिव लॉज for the informal sectors other than minimum wages act. हम मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा मतलब ऐसा और कोई लॉ होगा जो कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर होगा, इसके अंदर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर. Next, to protect their economic interests, worker in formal sectors can form trade union. अब जो आपके पास फॉर्मल सेक्टर है उसमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे वर्कर्स होते हैं फॉर्मल सेक्टर्स के, वो क्या करते हैं, ट्रेड यूनियंस बनाते हैं. बट इस तरह की यूनियन जो है वो आपको इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली वल्नरेबल और अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स होते हैं बहुत ज्यादा उनमें कमी क्या पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है, अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं उनको लेकर मार्केट के अंदर, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनको कितना काम मिलेगा, कब तक लगाएंगे, कब उनको हटाया जा सकता है. ठीक है, तो ये सब उनके मतलब अनसर्टेनिटीज जो है मार्केट की वो बहुत ज्यादा बनी रहती है. बट दे आर हायर, और उनको कभी भी हायर किया जा सकता है व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड एंड द फायर, और कभी भी फायर किया जा सकता है देयर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन. अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए तो उनको निकाल दिया जाएगा, जॉब से फायर कर दिया जाएगा. और अगर मान लो क्या हो गया, मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, उन्हें हायर कर लिया जाता है. तो यहाँ पर अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, बट फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, so now the difference between formal workers and informal workers are, first formal workers work is organized sector of the economy, and in this work is unorganized sector of the economy. Second, formal workers are entitled to social security benefit like provident fund, gratuity and pension, and informal workers are not entitled to social security benefit. Formal workers can form trade union, but informal sector cannot form trade union. Formal workers are protected by various labor laws against uncertainties of the market, but informal workers remains unprotected by labor laws and are therefore highly vulnerable to uncertainties of the market. Okay, students. So informalization of workforce is defined as a situation. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज. जब वर्कफोर्स का परसेंटेज फॉर्मल सेक्टर में उसका परसेंटेज कम हो रहा है, डिक्लाइन होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है वो राइज हो रहा हो, तो वो सिचुएशन होती है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की. ओके, सो इन अकॉर्डेंस विद द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी as a central goal of development planning launched in 1951, formal sector employment should have risen and informal sector employment should have declined over time. मतलब कि ये होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर
जो एम्प्लॉयमेंट है वो राइजन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए. बट अलास, just the opposite has happened in the Indian economy, and it has happened not accidentally. ये कोई accidentally नहीं हुआ ऐसा, but as a consequence of the strategy of development since 1991. लेकिन ये कब क्यों हुआ ऐसा? ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ कि ऐसा हो गया कि हम चाहते थे तो ये थे कि फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कम हो, लेकिन इसका अपोजिट हो गया. तो ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, बल्कि ये किस वजह से हुआ? जो 1991 तक की हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई थी डेवलपमेंट की, उसका ये रिजल्ट है. So a series of economic reforms were launched in 1991. 1991 में हमने अभी पिछले जो है आपके पास 6 चैप्टर में स्टडी करके आए हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, एक सीरीज हमने लॉन्च की थी जिसके अंदर हमने किसके साथ की थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो एज देयर की एलिमेंट्स, सो कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी. Okay, so and in the process of transformation, there has been a significant drift towards informalization of workers. Market economy and informalization of workers perhaps are strongly correlated to each other. Informalization is driven by the force of supply एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट. क्योंकि इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे चलता है, किसके द्वारा चलता है? कि मार्केट में जो सप्लाई की फोर्स है और लेबर मार्केट में जो डिमांड है, ठीक है, लेबर मार्केट में डिमांड और जो सप्लाई की फोर्स के द्वारा इनफॉर्मलाइजेशन चलता है. सो प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कम्स टू मियरली 10% ऑफ द टोटल. 90% ऑफ द वर्कफोर्स कंटिन्यू टू बी इनफॉर्मल. अगर हम आपकी बात करें, प्रेजेंटली बात करें, तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें उसमें कितना टोटल है? 10% का. और 90% जो वर्कफोर्स है वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में ही लगे हुए हैं. एंड दिस पॉइंट टू ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी. क्लियर स्टूडेंट्स? So it's enough now. So that's all for today. Have a good day.